Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is rain water harvesting along with advantage and disadvantage of rainwater harvesting. The particular topic related to B.Ed semester 4 optional paper number 13 issues of conservation and environmental regeneration. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वर्षा जल के संग्रहण के बारे में, साथ ही साथ उसके फायदे यानी लाभ और हानि के बारे में। यह प्रकरण B.Ed सेमेस्टर 4 के ऑप्शनल पेपर इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन के अंतर्गत यूनिट 2 में है। जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मैं बात करूं, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि वर्षा के जल को कैसे संग्रह किया जाए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि वर्षा के जल को आप अपने आसपास संग्रह कर सकते हैं और वाटर के लेवल को यानी जल के जो स्तर है उसको ऊपर उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्षा का जल है उसे संग्रह करके पीने की पानी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो पीने के पानी यानी मीठे जल की जो समस्या है वह एक विकट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले वर्षों में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, पीने के पानी की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए आवश्यक है कि वर्षा के जल को संग्रह किया जाए और उसे कैसे पीने योग्य बनाया जाए उसके बारे में मैं अब आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 paper 13 optional paper issues of conservation and environmental regeneration. Now rainwater harvesting. First introduce the particular topic rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the simple process or technology used to conserve rainwater by collecting, storing, conveying and purifying of rainwater that runs off from rooftops, park, road, open ground, etc. for later use. All living things, including plants, animals, and human beings, need water to live and to carry out different cellular activities. Next point, we all use water for different kinds of day-to-day activities such as cleaning, washing, bathing, cooking, drinking, and other domestic and industrial usage. Next point, water is a precious, essential, and an abiotic components of the ecosystem. Next point, today we all are heading towards the scarcity of water, and this is mainly because of the lack of water conservation and pollution of water bodies. Now, rainwater harvesting system consists of the following components: catchment, number 1, conveyance system, number 3, filter, and number 4, tank and the recharge structures. Number 1, catchment, used to collect and store the captured rainwater. Conveyance system, it is used to transport the harvested water from the catchment to the recharge zone. Next, filter, used to filtering the collected rainwater and remove pollutants. Next, tank and recharge structure, used to store the filter water. Now, which is ready to use. Overall, the 4 steps. The process of rainwater harvesting involves the collecting and the storage of rainwater with the help of artificially designed system that run off naturally or man-made catchment areas like the rooftop, compounds, rock surface, hill slopes, artificially repaired impervious or semi-pervious land surface. Now, several factors play a vital role in the amount of water harvested. Some of these factors are: number 1, the quantum of runoff
Number 2, features of catchments. Number 3, impact on environment. Number 4, availability of the technology. Number 5, the capacity of the storage tank. Next, types of roof, its slope and its materials. Next, the frequency, quantity and the quality of the rainfall. The speed and ease with which the rainwater penetrates through the subsoil to recharge the groundwater. Now, advantages of rainwater harvesting. The benefit of rainwater harvesting system are listed below. Number 1, less cost. Number 2, helps in reducing the water bill, decreases the demand for water. Next, reduces the need for imported water. Next, promotes both water and energy conservation. Next, improves the quality and quantity of groundwater. Next, it reduces soil erosion, storm water runoff, flooding and pollution of surface water with fertilizers, pesticides, metals and other sediments. Next, it is an excellent source of water for landscape irrigation with number of no chemicals and dissolved salts and free from all minerals. Now, disadvantages of rainwater harvesting. In addition to the great advantages, the rainwater harvesting system has few disadvantages like unpredictable rainfall, unavailability of proper storage system, etc. Next, regular maintenance is required. Next, requires some technical skill for installation. Next, limited and no rainfall can limit the supply of rainwater. Next, if not installed correctly, it may attract mosquitoes and other waterborne disease. And last one is, one of the significant drawback of the rainwater harvesting system is storage limits. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। बारिश के पानी का संग्रहण, सबसे पहले इसके बारे में परिचय। वर्षा जल संचय एक सरल प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग वर्षा के पानी को इकट्ठा करने, भंडारण, संवहन और शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जो बाद के उपयोग के लिए छतों, पार्कों, सड़कों, खुले मैदान आदि से निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों, जानवरों, मनुष्य सहित सभी जीवित चीज़ों को जीवित रहने और विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हम सभी दिन प्रतिदिन गतिविधियों के लिए पानी का उपयोग करते हैं, जैसे कि सफाई, धुलाई, स्नान करना, खाना पकाने, पीने, अन्य घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक कीमती, आवश्यक और महत्वपूर्ण और एक अजैविक घटक है। अब वर्षा जल संचयन प्रणाली में निम्नलिखित घटक होते हैं, जैसे कि जल संग्रह, प्रवाह का तरीका, फिल्टर और लास्ट में टैंक और पुनर्भरण संरचना। सबसे पहले जल संग्रह, एकत्रित वर्षा जल को इकट्ठा करने और स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रवाह का तरीका, इसका उपयोग जल संग्रह से रिचार्ज जोन में काटा हुआ पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है, यानी पानी जहां स्टोर होता है वहां से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। फिल्टर, यह एक ऐसा तरीका जिसमें कि छन्ना पत्र के रूप में यानी पानी को फिल्टर करते हैं यानी छानते हैं। एकत्रित रेन वाटर को फिल्टर करने और प्रदूषकों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टैंक और पुनर्भरण संरचना, फिल्टर किए गए पानी को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो उपयोग के लिए तैयार है। वर्षा जल संचय की प्रक्रिया में कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित जल ग्रहण क्षेत्रों जैसे छत, यौगिकों, चट्टान की सतह, पहाड़ी ढलानों, कृत्रिम से मरम्मत की गई कृत्रिम या अर्ध विकृत से चलने वाली कृत्रिम से डिजाइन किए गए सिस्टम की मदद से संग्रह और वर्षा जल का भंडारण शामिल है। कई कारक कटाई किए गए पानी की मात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में से कुछ हैं: अपवाह की मात्रा, दूसरा जल संग्रह की विशेषताएं, तीसरा पर्यावरण पर प्रभाव, चौथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, नेक्स्ट भंडारण टैंक की क्षमता, नेक्स्ट छत के प्रकार, इसकी ढलान और इसकी सामग्री, नेक्स्ट बारिश की आवृत्ति, मात्रा और गुणवत्ता, नेक्स्ट भूजल को यानी भूमि के जल को रिचार्ज यानी दोबारा जो है वह संग्रहण करने के लिए वर्षा जल मिट्टी के माध्यम से प्रवेश करता है जिसकी गति आसानी से नीचे तक पहुंचती है।
वर्षा जल संचय प्रणाली पानी के संरक्षण का समर्थन करने के लिए प्रचलित पानी की जाने वाले सर्वोत्तम विधियों में से एक है, यानी पालन की जाने वाली सर्वोत्तम विधियों में से एक है। अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की कमी चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। वर्तमान समय में वर्षा जल शुद्ध अच्छी गुणवत्ता का है, जो कि सिंचाई, धुलाई या स्नान, साफ सफाई इत्यादि सभी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। वर्षा जल संचय के लाभ: नंबर 1, कम लागत। नंबर 2, पानी के बिल को कम करने में मदद करता है। तीसरा, पानी की मांग को घटाता है। आयातित पानी की आवश्यकता को कम करता है। जल और ऊर्जा संरक्षण दोनों को बढ़ावा देता है। भूजल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार भी करता है। यह तकनीक अपेक्षाकृत सरल, स्थापित और संचालित करने में आसान है। यह मिट्टी के कटाव, तूफान, जल अपवाह, बाढ़ और उर्वरक, कीटनाशकों, धातुओं, अन्य प्रकार के समस्याओं, साथ ही साथ प्रदूषण की समस्या को भी कम करता है। इसके नुकसान क्या क्या है? लाभ के अलावा जो नुकसान है वह जैसे कि अप्रत्याशित वर्षा, उचित भंडारण प्रणाली की उपलब्धता इत्यादि। वर्षा जल संचय प्रक्रिया के कुछ और नुकसान इस प्रकार है, जैसे कि नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। रखरखाव सही से अगर ना हो तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ तकनीकी कौशल की भी आवश्यकता होती है। अगर तकनीकी तौर पर अगर सही तरीके से काम ना हो तो वर्षा के जल को संग्रहण करना भी मुश्किल हो जाता है। सीमित मात्रा में जल को संचित करके अगर रखा जाए तो ठीक है, अन्यथा अगर ये असीमित हो और प्रॉपर तरीके से अगर ना किया जाए तो विभिन्न प्रकार के बीमारियां हो जाती है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और जल जनित रोगों की ओर भी हम बढ़ते हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। वर्षा जल संचय प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियों में से एक भंडारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि भंडारण जब तक सही तरीके से नहीं होगा तब तक उसकी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इस प्रकार से मैंने इस टॉपिक को पूरा किया। अगले क्लास में जल संसाधन प्रबंधन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।